ऑलराइट फ्रेंड्स, सो एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज ये जो हमारा एपिसोड है, ये एपिसोड हमारे इस सीरीज में, जिसको हमने कहा था नेटवर्क मार्केटिंग को लॉकडाउन में कैसे करें या डिजिटली कैसे करें, उस सीरीज का आखिरी एपिसोड है। वी हैव लर्नड अ लॉट, वी हैव कम अ लॉन्ग वे, and the most interesting part about this series has been the introduction of this wonderful personality that is Janvi Singh with us. People are falling in love with you, Janvi, and आपके कितने सारे fans बन गए हैं, मतलब अंदाजा नहीं लगा सकता हूँ, but I am very happy that a role model is coming up and the country needs more young people like you who are having such enterprising attitude and who are having so much passion and commitment for the work that they are doing. I'm very happy that we collaborated, and I wish you all the very best as the way I have been doing it time and again. And this is just the beginning, Janvi. This brings a lot of responsibilities on your shoulder, and I hope that you will carry them. Right? Thank you so much, sir, and thanks to you as well for collaborating with me. As जो भी value हमने provide की, I think ये लोग follow करें, and thanks to you for providing me this platform. God bless. Definitely, whenever there is value, that value must be polished and brought in front of people. This is the motto. यही हम लोग believe करते हैं, helping people help themselves. तो कोई भी ऐसी चीज हो जिससे लोगों की मदद हो सके, जिससे लोगों का कल्याण हो सके, उसके लिए we'll always ready. So आज का excitement क्या है, जानवी? Please share with us. कुछ surprise है? Sure. Yes, right. It's a bonus lesson because we have already ended up with the series, but this is the bonus we were providing. But firstly, before that, I want to congratulate all the viewers for completing this series, and it actually shows कि आपका commitment है, आपका vision है. जो भी लोग इसको देख रहे हैं, जिन्होंने पूरे videos देखे हैं, इस last video को भी देख रहे हैं, I just highly appreciate them कि उनके पास कुछ commitment है, कुछ passion है, कुछ अलग करने का. भीड़ में बैठ के ताली नहीं बजानी है, but वो चाहते हैं कि stage पे जाके लोग उनके लिए भी तालियां बजाएं. So thank you to all the viewers, thanks to sir, thanks to my parents जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री में लाया, and I'm working in this industry. Thanks to them, उन्होंने क्या खा के पैदा किया, ये पता लगाना पड़ेगा. Which supplement they had before they Wonderful. Thank you so much. All right. So thank you everyone for the love and response. बहुत अच्छे messages, बहुत sweet messages, implementations लोगों के जो मुझे receive हुआ है, मैंने expect नहीं किया था, but that was very that was immense love जो अभी तक मुझे मिला. It was very emotional, very exciting as well. तो बहुत अच्छा लगा. So thanks to each and everyone. And now comes to the bonus lesson. So what we will do in here, यहाँ पे, yeah. So here what we are doing, यहाँ पे ये वीडियो थोड़ा सा रिवर्स होगा because I'll be asking questions to the sir. अच्छा. That's a surprise for me also. Okay. All right. So it is a bonus lesson day number 8 and we will be ending this series here. So it is about be a digipreneur. अभी तक हमने जितना कुछ सीखा, but now it's time for yourself, for you to be a digipreneur. कि किस तरह से आप अपना business expand करते हैं online and किस तरह से आप एक digital entrepreneur बनते हैं. हमने अपने efforts पूरे दिए हैं and now it's your time to give efforts for your business. ये हमारे लिए नहीं, आपको अपने खुद के लिए करना है. So just start doing that. And ये वीडियो भी इसी के बारे में है कि जो भी काम करें आप उसका एक टारगेट सेट करें. बहुत बड़ा टारगेट ना सेट कर ले कि जस्ट आई वांट टू क्रिएट दिस मच वीडियोस इन दिस वीक. छोटे छोटे टारगेट सेट करके उन्हें कंप्लीट कीजिए. एक हफ्ते का कंटेंट एक दिन में बनाया और उसे पोस्ट किया. एज इतने छोटे टास्क तो हम ले ही सकते हैं, जैसे हमने इतने बिजनेस के लिए हम कर ही सकते हैं. जैसे हम ऑफलाइन बेस से ज्यादा एफर्ट देते थे, आई थिंक ऑनलाइन बिजनेस इज मच मोर इजियर देन ऑफलाइन. टाइम बचता है, पेट्रोल बचता है, पैसे बचते हैं, बहुत कुछ बचता है यहाँ पे, लेकिन बिजनेस हमेशा ग्रो होता है, बिजनेस कभी कम नहीं होता, तो वो हमेशा एक्सपैंड करता रहेगा. सो जस्ट बी कंसिस्टेंट विथ योर गोल्स एंड विथ योर एक्शंस, और इसके लिए एक्शंस लीजिए, सिर्फ सीखिए मत. हमें अच्छा लगेगा हमने जो एफर्ट्स इतने दिनों में दिए हैं कि वो सिर्फ एक बातें ना रह जाए, सिर्फ लर्निंग्स ना रह जाए. अगर वो आप करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा. सो दैट विल बी मच मोर बेटर. जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं और जो लोग इस टाइम सोच रहे हैं करने का, जस्ट स्टार्ट डूइंग. सोचते मत रहिए, करना शुरू करिए. दैट इज द फिलोसफी ऑफ कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट. एंड इसकी एक टेक्निक भी होती है, व्हिच आई हैव लर्नड रिसेंटली. आई वाज रीडिंग अ बुक, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, एंड इट वाज अबाउट दिस ओनली, दैट देयर इज अ जापानीज टेक्निक काइजन that you should must follow. So Kaizen is about कि छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, हर दिन छोटा छोटा इंप्रूवमेंट कीजिए, थोड़े थोड़े इंप्रूवमेंट कीजिए, कुछ थोड़े कंटेंट से शुरू कीजिए और धीरे धीरे अपना कंटेंट एक्सपैंड कीजिए. दैट इज व्हाट वी डू फॉर द कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट. क्योंकि इंप्रूवमेंट कभी भी रुकता नहीं है, हमेशा बढ़ता रहता है. तो लोगों को पता चलना चाहिए कि आप ग्रोथ पे है, खुद पे विश्वास होना चाहिए कि अगर इस इंडस्ट्री में आए हैं तो टॉप पे जाना है. अगर कोई चीज शुरू की है तो उसे खत्म भी करिए.
टॉप पे पहुंचे, जो काम करे टॉप का करे, दैट इज व्हाट आई बिलीव। अगर इस इंडस्ट्री में तो इस इंडस्ट्री का टॉप का, किसी और इंडस्ट्री में तो किसी और की इंडस्ट्री के टॉप का, आपसे बेहतर कोई नहीं होना चाहिए। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ इन योर ओन फील्ड, बी द मास्टर ऑफ इट, एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव। एंड हमेशा आपका बिजनेस और आप सेपरेटेड नहीं है, लोगों को पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। सो डोंट बी जस्ट गुड व्हेन यू कैन बी ग्रेट। गुड बन के मत रहिए, एक नॉर्मल एवरेज बन के मत रहिए, ट्राई टू बी समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो लोगों में से आपको आप कुछ लोगों से अलग शाइन करने चाहिए। नेटवर्क मार्केटर्स हमेशा अलग शाइन करते हैं, किसी भी भीड़ में किसी की भी पर्सनालिटी, किसी का भी करिश्मा दिख जाता है दैट ही और शी इज फ्रॉम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। ऐसा करिश्मा अपने आप खुद का बनाइए कि लोग पहचान जाए देखते ही, और वहीं से सेल्स ग्रो शुरू होती है। दैट इज द पोस्चर यू मेंटेन, द ट्रस्ट इन योर आईज, द स्पार्क, एनर्जी, एंथुसियाज्म, एवरीथिंग, वो सब आप में दिखना चाहिए कि आप यहाँ पे क्या काम करने आए हैं। So these are the very important thing, and what I think that slow and steady doesn't work. वो कहानी जो हमने सुनी है that doesn't work. अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, लोग कहते हैं कि आपको 5 साल तो देने ही पड़ेंगे, 10 साल तो लगाने ही पड़ेंगे। There is nothing such thing. टाइम बदल गया है, 2-3 साल में you can do wonders, you can do miracles in your life. That's what I believe. And even मैंने खुद का गोल भी ऐसे लिया, मेरे टीम में जितने लोग, I just said ये इतना स्लो और धीरे बन के काम नहीं चलेगा। Be in a massive action state and always work for it. So these are the things you have to keep in mind. चाहे आप ऑफलाइन काम करें चाहे ऑनलाइन काम करें, that doesn't matter. Just be fast and ready for the lasting improvement and transformation in your life. I'll be asking some of the few questions from Ashish sir कि वो क्या समझते हैं जो भी हमने सीरीज अभी तक की, कि ऑनलाइन चीजों के अलावा और क्या चीजें हैं जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती हैं एज अ डिजिप्रेन्योर और नेटवर्क मार्केटिंग और अ नेटवर्क मार्केटर। See, the word digipreneur itself, contains the word entrepreneur. Right. And you can never be an entrepreneur unless you have two things. One is that you should have a passion, an undying passion inside you. And that passion should have a purpose. You can never have a passion without a purpose. I cannot have a passion of, scratching my head. I cannot be passionate about that. There is no purpose behind it, right? But I can definitely be passionate about helping more and more people. If I have a purpose of helping more and more people. Now, डिजीप्रेन्योर में क्या है कि वो डिजिटली मैं वो काम को कर रहा हूँ, और वो डिजिटली मैं क्यों करूंगा, बिकॉज मेरे को जो भी टेक्निक हासिल होगी, इट्स लाइक डॉक्टर हु इज पैशनेट अबाउट सॉल्विंग द हेल्थ क्राइसिस ऑफ अ पेशेंट। तो अब उनको उसको, अगर जैसे आपने 3 Idiots मूवी देखी हो, अब उनको उस बच्चे को बाहर लाना है, तो करीना कपूर वो डिजिटली उनको गाइड कर रही है और वो लोग फिजिकली एक्ट कर रहे हैं, आमिर खान एंड हिज टीम। तो वो सब कुछ क्यों पॉसिबल? बिकॉज दे आर पैशनेट एंड द पर्पस इज वेरी क्लियर फॉर देम। Very clear. So whether you are an entrepreneur, whether you are a person sitting in a village and doing things, or whether you are a person sitting in a hi-fi city, high-tech city, doesn't matter. Ultimately, the passion and purpose as वो real underlying cause है। अगर वो है तो आप सब कुछ सीखने को तैयार हो जाओगे। You'll be willing to do everything. तपस्या का हर एक पार्ट आप पूरा करना चाहोगे, डिजिटल हो या फिजिकल हो। Exactly, absolutely right, and I totally agree to this. And second thing जो इस slide में what I want to show is कि जरूरी नहीं है कि हर बार टेक्निक्स एंड जो भी चीजें हमने अभी तक सिखाई या सीखी आपने वही काम करे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इज अ वेरी वाइड सब्जेक्ट। जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो टेक्निक्स हमने फॉलो कर ली एंड देन वी विल बी डूइंग वंडर्स, बट एक्चुअली इट्स अ होल सिलेबस। जैसे हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं, एक सब्जेक्ट पढ़े और बाकी सब्जेक्ट्स ना पढ़े तो काम नहीं चलेगा। यू हैव टू मास्टर ईच एंड एवरीथिंग। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी अगर एक चीज मास्टर की है तो दूसरी चीज मास्टर करनी है और तीसरी चीज भी मास्टर करनी है। तो ये चीज मैं ये समझाना चाहती हूँ कि सिर्फ डिजिटली थिंग्स को मास्टर नहीं करना, यू हैव टू मास्टर सोशल मीडिया, ऑनलाइन टूल्स, टेक्निक्स, बट अलॉन्ग विद दैट master your communication, master your multiplication, your own personal mastery is very important, your own goals, your own beliefs, actions। कभी हमें फेलियर मिलेगा, कभी सक्सेस मिलेगा, कभी फेलियर मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, बट जो इस स्टेज में हमेशा टिके रहेगा, हमेशा कंसिस्टेंटली बना रहेगा, उसी को सक्सेस मिलेगी। क्योंकि होता है लोगों को कंटिन्यूअसली कभी फेल मिलता है, फिर थोड़ी सक्सेस मिली, फिर फेल मिला, फिर सक्सेस मिली, और वो एक टाइम पे छोड़ देते हैं बिजनेस को, एंड दे वर लाइक कि हमने भी किया था। सो आपने किया नहीं था, आपने बीच में छोड़ दिया था। जब तक पूरा प्रोसेस नहीं किया तब तक आउटकम कैसे आ गया? आपने कैसे जज कर लिया कि मुझसे नहीं हुआ? कई बार हम कंपनी को दोष देते हैं, अपलाइन को दोष देते हैं, कभी किसी को सिस्टम को दोष देते हैं, बट एक्चुअली में ये आपकी गलती थी कि यू डिडंट मास्टर ऑल द थिंग्स जो भी एक नेटवर्क मार्केटिंग में होनी चाहिए। बट हमने पानी गर्म किया था, दैट्स इट। राइट,
एग्जैक्टली तो यहाँ पे समझाने का मतलब ये है कि ये टेक्निक्स तो काम आएंगी, बट बी इन अ कांस्टेंट लर्निंग मोड, हमेशा कुछ ना कुछ सीखे, चाहे किताबों से। आशीष सर का यूट्यूब चैनल है सो पावरफुल, इतनी अच्छी अच्छी टेक्निक्स है, जो ये स्किल्स मैंने यहाँ पे बताई है उसे मास्टर करने के लिए। देयर इज मास्टर कम्युनिकेशन, टीम मल्टीप्लिकेशन, पर्सनल मास्टरी, लीडरशिप, एवरीथिंग वीडियोज आर अवेलेबल। और भी बहुत सारे लीडर्स के वीडियोस अवेलेबल है, जस्ट गो एंड एक्सप्लोर। जब तक एक्सप्लोर नहीं करेंगे तब तक एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे। दैट इज अ वेरी बेसिक थिंग। सो दीज आर द थिंग्स। एंड लोगों के कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे दैट आई वांट टू पिक अप। सर, अगर आपके पास भी क्वेश्चन हो जो ऑडियंस से आए हैं रिगार्डिंग दिस सीरीज, देन लेट्स डिस्कस दैट फर्स्ट। सी डिजिटल में एडवांटेज क्या है कि यू कैन बी वेरी फास्ट, बस में डिसएडवांटेज क्या है कि पीपल स्लिप ऑल्सो वेरी फास्ट. Right. A person who is committed to you, okay, fine, I'll come in the meeting, that person is slipping away and you have no access, right? A person who is committed, I'll build the business, that person and probably signed up also, probably sent you the details. They probably are very hesitant in terms of, putting the money. जो आपने master online, sales closure की बात की थी, तो conceptually तो बहुत अच्छा लग रहा है, but how to develop the belief and how to be consistent on this premise, because this premise, even the big, large corporations are taking time to, learn this. ऐसा नहीं है कि मतलब वो लोग स्पेस से नहीं गुजर रहे, they're also taking time to adapt to this. तो सडनली कोई आदमी अपने आप को 100% अडेप्ट कर ले और इस बात पे बिलीव कर ले, how easy it is. Let's talk about that. Sure. And how feasible it is. Sure. All right. So I believe कि belief ज्यादा strong तब होगा जब आप actions लेंगे। जब तक करके नहीं देखेंगे तब तक पता कैसे चलेगा। जब तक मेरे पास कोई प्रॉब्लम होती है, अगर कोई सब्जेक्टिव प्रॉब्लम होती है मैथ्स में, जब तक हम डरते रहेंगे कि यार ये मुझसे सॉल्व नहीं होगा, आई कांट फाइंड द आंसर। आपने करके नहीं देखा, पहले जज कर लिया कि ये मुझसे होगा ही नहीं, मेरे पास लोग आएंगे नहीं, मुझसे सेल्स क्लोज होगी नहीं, मुझसे कंटेंट क्रिएशन होगा नहीं। मेरे पास भी ऐसे कुछ सवाल आए थे कि मुझे कंटेंट क्रिएशन में फियर है, लोग मुझे जज करेंगे, हेट मिलेगा, लोग आएंगे नहीं। तो इस दुनिया में हेट सबको मिलता है, लोगों को ऑब्जेक्शंस मिलते हैं, तो चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे जेफ बेजोस हो, हेट, कमेंट्स, नेगेटिविटी हर किसी को फेस करनी पड़ती है। लेकिन ये आपका मैटर है कि आप कितने फोकस है, आप कितने डिटरमाइंड है अपने गोल के लिए, अपने बिजनेस को ले जाने के लिए। एंड इन द वेरी फर्स्ट वीडियो मैंने ये कहा था कि हम एंड आप एंटरप्रेन्योर्स है, तो इस चेंज तो करना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योर्स हमेशा समय के साथ खुद को बदलते हैं, जो नहीं बदलते हैं वो एंटरप्रेन्योर्स रियल मायने में नहीं है। सो ऑलवेज बी रेडी फॉर द कॉन्स्टेंट चेंज, चाहे वो ऑफलाइन हो रहा हो चाहे ऑनलाइन हो रहा हो, क्योंकि वो टेक्निक्स अब काम नहीं आएगी। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। एंड पहले वीडियो में हमने ये माइंड ब्लॉकेजेस की बात इसीलिए की थी कि पहले अपने माइंडसेट को इंप्रूव करें, माइंड ब्लॉकेजेस जो आपने बना रखे हैं उसे ब्रेक करें, तभी आगे हम सीरीज में कोई मतलब रख पाएंगे। जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक बाकी चीजें समझ में आएंगी नहीं, और ना सीख पाएंगे और ना फिर उस पर एक्शन ले पाएंगे। वेरी फर्स्ट थिंग टू ब्रेक द मेंटल ब्लॉक्स, जितने भी मेंटल ब्लॉक्स है उसको आज ही तोड़ दीजिए एंड देन फॉलो द सीरीज। जब तक वो नहीं होगा तब तक ना बिलीफ आएगा, और ना बिलीफ आएगा तो अचीव तो हो ही नहीं सकता। दैट इज व्हाट वी हैव रेड। लाइक हमने बिजनेस में आजकल आज तक हमने बिजनेस में यही सीखा, जब तक बिलीव नहीं करेंगे तब तक अचीव नहीं करेंगे। सो दैट इज द बेसिक थिंग। हमारे कुलीन देसाई साहब हैं जो हमारे बहुत सीनियर मेंटोर हैं वर्ल्ड वाइड में, तो ये बिलीव इन अचीव के ऊपर, अनलेस यू बिलीव समथिंग यू नॉट अचीव। इनफैक्ट फ्रेंड्स, इट्स वेरी सिंपल ना कि आप नेटफ्लिक्स यूज करते हो, आप व्हाट्सएप यूज करते हो, आप ओला यूज करते हो, उबर यूज करते हो, इतने सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आप यूज करते हो, उसमें से आज तक किसी एम्प्लॉय से आपकी कभी बात नहीं हुई, शायद इनका ऑफिस भी आपने नहीं देखा होगा, बट ये सब बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं बिकॉज दे हैव बिलीव्ड इन दैट प्लेटफॉर्म। सो देयर आर बिजनेसेस व्हिच आर रनिंग 100% ऑन द इंटरनेट and it very well works provided you have 100% belief on that and you don't have any backdoors. बार बार आप फॉल बैक नहीं करेंगे। आपके पास एडवांटेज है कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों अवेलेबल है, ठीक है, बट व्हाट इज इट दैट यू शुड एक्चुअली थिंक एज अ फ्यूचर। आपको फ्यूचर समझ के चलना पड़ेगा। तो जब सब कुछ ऑनलाइन जा रहा है तो आपको भी अपने फ्यूचर का बेट ऑनलाइन पे डालना ही पड़ेगा। ये लीप ऑफ फेथ आपको लेना पड़ेगा। जैसे जॉब करने वाले को एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ता है कि नेटवर्क मार्केटिंग मेरा फ्यूचर, राइट? तो उसको बहुत सारी चीजें बदलनी पड़ती है, अपने डीएनए के अंदर बदलाव करना पड़ता है। मैं एक जॉब के अंदर में था, आई वाज इन अ वेरी गुड जॉब, बट आई हैड टू कंप्लीटली चेंज द डीएनए इनसाइड मी। आई हैड टू टेक द लीप ऑफ फेथ कि नेटवर्क मार्केटिंग इज गोइंग टू बी माय करियर। तो इसी प्रकार से डिजिटल इज द वे फॉरवर्ड, इसका लीप ऑफ फेथ आपको लेना ही पड़ेगा। दैट्स द पॉइंट। एग्जैक्टली। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल, क्योंकि लोग पूछते हैं कि इज इट रियली पॉसिबल टू बिल्ड अ बिजनेस ऑनलाइन और इट इज रियली पॉसिबल टू ग्रो एंड एक्सपैंड बिजनेस ऑनलाइन। सो लेट मी टेल यू, देयर इज वन पर्सन, ही इज नॉट इंडियन, his name is Fraser Brooks, you can even search him. उन्होंने ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड किया है एंड he has a team of 40,000 people जो उन्होंने ऑनलाइन टीम की बिल्ड की है एंड he is a network marketer. Let me tell you this. तो उन्होंने अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? उनके टीममेट ने भी ये कॉपी किया होगा। That's what I am doing,
that's what Ashish sir will be doing. And यार जितने भी लोग हैं वो इस पे काम करने जा रहे हैं, तो अगर इतने सारे लोग, अगर 40,000 की टीम कोई बना सकता है, तो आप वो रिकॉर्ड ब्रेक करने की हिम्मत तो रख ही सकते हैं, राइट? तो जो भी एक्शंस हमने बताए, जो भी चीजें हमने बताई, जस्ट फॉलो देम, जस्ट इम्प्लीमेंट देम, एंड रिजल्ट्स पक्का मिलेंगे। दैट्स 100% थिंग। कोई भी चीज में, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, जहां भी एक्शंस लेंगे, जस्ट टेक मैसिव एक्शन एंड यू विल गेट द रिजल्ट। बिना एक्शंस के कोई रिजल्ट नहीं होगा। सिर्फ अट्रैक्ट करेंगे कि हाँ, लाइक आई हैव टू अचीव दिस मच पेन, आई हैव टू, लाइक मुझे ये रिकॉग्निशन चाहिए, मुझे ये पिन चाहिए, इनकम चाहिए, यू जस्ट अट्रैक्टिंग एंड एक्शन नहीं कर रहे हैं। सो देयर इज नो मीन्स ऑफ attracting the things, because in the word attraction there is the hidden word action. Attraction, you will notice this. So there is attraction plus action. So always remember this and take actions for that seriously if you are really passionate to be a like the top 1% network marketer. Beautiful. You know why gravitation comes up? Because of the movement. जितने भी प्लैनेट्स उनकी ग्रेविटेशन पुल आती है इसीलिए, बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली इन एक्शन। चाहे वो सन हो, चाहे वो अर्थ हो, दे कॉन्स्टेंटली इन एक्शन। दैट इज व्हाई द ग्रेविटेशनल पुल इज देयर। और जो जितना ज्यादा एक्शन में है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पुल क्रिएट करता है। एग्जैक्टली, राइट। ऑलराइट, सो आई हैव वन मोर क्वेश्चन अबाउट द किसी ने पूछा था मुझे कि सर फियर कैसे निकाले वीडियो मेकिंग का। यू हैव बीन डूइंग इट सिंस 3-4 years, तो सर ये आप ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर पाएंगे। सो आई वांट यू टू आंसर दिस क्वेश्चन कि फियर कैसे निकालें वीडियो बनाने का, कैमरे का फियर कैसे निकालें। तो कैमरे का फियर कैसे निकालें, उसका आंसर इसी में कि फियर कैसे निकालें। फियर जो वर्ड है ना, फियर को मैं डिफाइन कर देता हूँ। फियर इज फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। राइट, ओके, फॉल्स एविडेंस कि यार कहीं गड़बड़ हो गया, तो उसने वीडियो बनाया, लोगों ने हंस दिया उसके ऊपर, तो ऐसा होगा वैसा होगा। मतलब देयर इज लॉट ऑफ फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग अराउंड यू, और वो आपको रियल लग रहा है। ठीक है ना? कोई भी चीज जब भी आप नया करने जाते हो तो आपको डर लगेगा ही। जैसे मुझे माइक पकड़ना आसान लगता है क्योंकि मैं माइक पकड़ता आ रहा हूँ, राइट, या कैमरा फेस कर रहा हूँ। और मेरी मम्मी को चाय बनाना आसान लगता है। मेरे को चाय बनाने में डर लगता है, मेरी मम्मी को माइक पकड़ने में डर लगता है। तो जो आपने कर दिया वो आपके लिए आसान हो गया, और जो आपने नहीं किया उसके लिए आपको डर लग रहा है। तो दी ओनली फॉर्मूला टू क्योर एनी फियर इज, कहते हैं एक्शन क्योर्स ऑल फियर। ओके, तो जस्ट डू इट। नाइकी का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, टिक मार करके, जस्ट डू इट। कर दो, डर के आगे जीत। कर दो, जस्ट डू इट। करने से होता है, बाबा रामदेव भी बोलते हैं, कर दो। आप क्या करोगे? एक बार करोगे कुछ गलतियां होंगी, दूसरी बार करो कुछ गलतियां होंगी, तीसरी बार करते 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 वो चीज आपको आ जाएगी। तो इट्स नॉट अबाउट द फियर ऑफ द कैमरा, इट्स एक्चुअली द फियर इन योर माइंड। कैमरा की जगह वो स्टेज होगा तो भी आपको फियर होगा, स्टेज की जगह इंटरव्यू पैनल होगा तो भी आपको फियर होगा। You always, we have that instinct that what will people think about me? उस instinct को ही छोड़ दीजिए, because people have no time to think about you. The way you have not thought about the Prime Minister today, the way you have not thought about Amitabh Bachchan today, despite the fact that they're very popular. आपने शायद नहीं सोचा सुबह से उनके बारे में, इसलिए लोगों के पास भी वक्त नहीं आपके बारे में सोचने का। So at least give them something that they can think about. Make some mistakes and at least appear in front of them. They can at least laugh at you, and at least कहते हैं ना, love me or hate me, but you cannot ignore me. Yeah. So be present and don't be in an ignored state. Right. All right. तो सर ये कुछ क्वेश्चंस थे लोगों के, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, लाइक दे आर इन माय कमेंट्स, मैसेजेस, सो आई विल कीप आंसरिंग देम समहाउ थ्रू द वॉइस नोट और मैसेजेस। और आई जस्ट से टू दिस ऑडियंस कि जो भी क्वेश्चंस है आपके, यू कैन जस्ट डायरेक्टली पोस्ट इट ऑन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल ट्राई टू आंसर इट देयर एनी हाउ। हम उस पर बाहर जरूर रिप्लाई करेंगे। सम ऑफ द पीपल आर मैसेजिंग ऑन द टेलीग्राम एज वेल, तो जितना पॉसिबल है हमारी तरफ से वी आर रिप्लाइंग टू देम, एंड जो भी आपके सवाल है जस्ट पोस्ट देम वेरी फ्रैंकली, हर एक चीज का जवाब मिलेगा, जरूर मिलेगा। So this was all about the series. The end of this, series. Yeah. And thank you, Janvi, for this wonderful collaboration. And I'm sure we will come up with many more interesting, such episodes. And जो questions की बात हो रही है, इसको लेकर के भी हम लोग कुछ episodes बनाएंगे. We'll have an interview panel and we can talk about all those problems, because we are here to help anybody and everybody who wants to make a difference. Exactly. Thank you. And signing off. Yeah. Yes, sir, just one more thing. Do follow Ashish sir and me, because we will be posting the amazing content and you can learn much more things from there कि आपको कैसे content वहाँ create करना है. I guess Ashish sir will be starting this very soon, right sir? बिल्कुल बिल्कुल, we are right, so lot of ideas in place. ये सारी चीजें आपके पास आएंगी. Even you should provide us the ideas in the comments, etc. Exactly. हम लोग अच्छा content आपके लिए develop कर सकें. Exactly. Thank you so much to all the viewers again. Thank you.